बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा सातवां लेक्चर है इन टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनोमेट्रिक्स बाय एग्जाम्पल विच इज़ रिटन बाय गुजराती। ये हमारा चैप्टर 2 है, फंक्शनल फॉर्म ऑफ रिग्रेशन मॉडल। चैप्टर 2 में ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक है। The chapter 2 name is functional form of regression model. In this chapter we consider several models that are linear in parameters but are not necessarily so in the variable. In particular, we will discuss the following models which are frequently used in empirical analysis. In this lecture, we will discuss the following topics. The first one is log linear or double log model, where the regressant as well as the regressor are all in logarithmic form. The second one, in this chapter we will discuss log linear model in which the regression is logarithmic but the regressor can be in the log or linear form. The third one is linear log model in which the regression is in linear form but one or more regressor are in log form. A third one, in this chapter we will discuss reciprocal models in which the regressor are in inverse form. The fifth one is, and lastly we will discuss in this chapter, standardized variable regression model. We will use several examples to illustrate the various model. The first one is log linear or double log or constant elasticity model. We consider the celebrated Cobb-Douglas production function, which may be expressed as Qi is equal to beta 1 Li raised to the power beta 2 Ki raised to power beta 3, where Q is equal to output, L is equal to labor input, K is equal to capital, and beta 1 is a constant. Beta 1 is the constant, and beta 2 and beta 3 is the coefficient of this model. This model is non-linear in the parameter, and to estimate it as it stands requires non-linear estimation technique. However, if we take the logarithm of this function, we obtain ln qi is equal to ln beta I plus beta 2 ln Li plus beta 3 ln Ki, where ln denotes natural logarithm. We also write in the above equation written ln beta 1 is equal to a. We can write equation 2.2 as ln qi is equal to a plus beta 2 ln Li plus beta 3 ln Ki. मतलब ये जो कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, हम उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हमने पढ़ा है कि हम इस तरह कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को लिख सकते हैं। ये जो है ये हमारे साथ आउटपुट है, ठीक है, और ये जो है ये कोफिशिएंट है, मतलब जो कांस्टेंट है, ठीक है, और ये जो L1 है, ठीक है, L1 इसकी पावर जो है वो बीटा 2 है, ठीक है, L1 जो है वो कैपिटल है, ठीक है, लेबर है, और K1 जो है Ki जो है वो कैपिटल है, और इसकी जो बीटा 2 और बीटा 3 जो है ये जो पावर है, ठीक है, इसके ऊपर जो पावर है ये हमारे साथ क्या है, कोफिशिएंट, ठीक है। ये जो मॉडल है ये हमारे साथ जो है नॉन लीनियर मॉडल है। इसकी एस्टिमेशन जो है वो हम नॉन लीनियर की मेथड से करेंगे, ठीक है। जब मैं इस मॉडल के इसको हमने नाम दी है इक्वेशन 2.1, ठीक है। अगर हम इसको नेचुरल लॉगरिथम जो है अप्लाई करें, ठीक है, जब मैं इस 2.1 की मॉडल का लॉगरिथम लेता हूँ, ठीक है, तो ये हमारे साथ इस तरह आएगा, ठीक है। ln qi इज इक्वल टू, ठीक है, ln बीटा 1, ये ln जो है वो बीटा 1 पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, प्लस बीटा 2, ये जो पावर है अगर हम इसका लॉगरिथम लेते हैं, ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम, तो पावर जो है वो बेस पे आ जाएगा, ठीक है, और लॉग जो है वो ln जो है वो जो लेबर की जो वेरिएबल है वो उस पर अप्लाई होगा, ठीक है। इसको हमने इस इक्वेशन को हमने इस तरह लिखा, ठीक है। और ये जो
के आई है, अगर हम इसके लेग ले ले, ठीक है, लॉग ले ले, ठीक है, तो ये जो बीटा 3 है ये पहले आ जाएगा, ठीक है, और ln जो है वो कैपिटल की जो वेरिएबल है उस पर लग जाए। तो हम इस तरह इक्वेशन 2.1 को इस तरह हम लिख सकते हैं, ln क्यू आई इज इक्वल टू ln बीटा 1 प्लस बीटा 2 ln एल आई प्लस बीटा 3 ln के आई, विच नेम इज इक्वेशन 2.2। जब मैंने सिंपली यहाँ पर ये किया है कि मतलब ln बीटा 1 जो है यहाँ पर जो कांस्टेंट है जिसका हमने लॉग ली है उसको मैंने सिंपली जो है ए का नाम दी है, ठीक है, और इसको हमने इक्वेशन 2.2 का नाम दी है। इक्वेशन 2.3 यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन 2.3 इज लीनियर इन द पैरामीटर ए बीटा 2 एंड बीटा 3 and is therefore a linear equation, all thought it is non-linear in the variable q, l and k square। मतलब ये है जो इक्वेशन 2.3 जो है इसकी जो पैरामीटर है वो लीनियर है, लेकिन असल में जो इसकी वेरिएबल है, ठीक है, ये जो है नॉन लीनियर है। एड इन द एरर टर्म यू आई टू इक्वेशन 2.3। जब हम एरर जो है म्यू आई जो है वो हम इसके साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा मॉडल जो है इसके साथ जो हमने रेजिजुअल जो है वो हम इसके साथ ऐड करते हैं, ठीक है। इसलिए हम रेजिजुअल के साथ ऐड करते हैं क्योंकि आउटपुट जो है वो सिर्फ और सिर्फ लेबर और कैपिटल की वजह से इम्पेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, बल्कि अदर फैक्टर से भी इफेक्ट हो रहा है। तो हम इसकी जगह जो है अदर फैक्टर्स जो है वो हम उसका डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते था, तो हमने यहाँ पर जो है एरर टर्म का यू आई का हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है। इक्वेशन 2.4 इज नोन एज लॉग और डबल लॉग लीनियर और कांस्टेंट इलास्टिसिटी मॉडल बिकॉज द बोथ रिग्रेसेंट एंड रिग्रेसर आर इन द लॉग फॉर्म। मतलब यह है कि हमने इसको लॉग या डबल लॉग का नाम इसलिए दी है क्योंकि दोनों का डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो दोनों लॉगमेटिक फॉर्म में है, ठीक है। एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ द लॉग लीनियर मॉडल इज डेट द स्लोप कोएफिशिएंट कैन बी इंटरप्रेटेड एज इलास्टिसिटी। इसकी इंटरेस्टेड पॉइंट ये है, मतलब ये इक्वेशन 2.4 जो है इसकी इंटरेस्टेड पॉइंट ये है, इसकी जो कोएफिशिएंट की जो इंटरप्रिटेशन है उसको हम इलास्टिसिटी एज इंटरप्रेट कर सकते हैं। मतलब ये जो है ये और ये जो है इसकी जो कोएफिशिएंट की जो वैल्यू आती है उसको हम इलास्टिसिटी कह सकते हैं। Specifically, beta 2 is the partial elasticity of output with respect to the labor input holding all other variables constant here capital R K. That is, it gives the percentage change in output per a percentage change in the labor input ceteris paribus। मतलब ये है कि जो बीटा 2 की जो कोएफिशिएंट है हम इसको इलास्टिसिटी भी कहते हैं, ठीक है, और ये हमें ये बताता है कि मतलब लेबर की वजह से कितने परसेंट जो है कि आउटपुट में इजाफा होता है, ठीक है, इसका इंटरप्रिटेशन ये है। सिमिलरली बीटा 3 गिव्स द पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट with respect to the capital input holding all other inputs constant, hence these elasticity are constant over the range of observation. The double log model is also known as constant elasticity model। मतलब ये जो बीटा 3 है इसको भी हम इलास्टिसिटी कहते हैं और इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल कहते हैं, ठीक है। ये हमें ये बताता है कि कितनी परसेंट जो है कैपिटल में चेंजेस आते हैं तो आउटपुट में कितना परसेंट चेंज आएगा, ठीक है। मतलब जब हम एडिशनल जो है कैपिटल जो है वो एम्प्लॉय कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे साथ आउटपुट में कितना चेंज आएगा, ठीक है। और वन पॉइंट इज नोटेड कि मतलब जो डबल लॉग मॉडल है हम इसको कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ मॉडल भी कह सकते हैं, ठीक है। Since these elasticity are constant over the range of observation, the double log model is also known as a constant elasticity of model। ये हमने अभी बताया, ठीक है। Another interesting property of the Cobb-Douglas production function is that the sum of partial slope coefficient beta 2 plus beta 3 gives information about return to scale. That is the response of output to a proportion change in the इनपुट। मतलब इसमें इंटरेस्टेड पॉइंट ये है कि मतलब जो बीटा 2 और बीटा 3 है इसकी एडिशन जो है वो हमें रिटर्न टू स्केल बताता है, ठीक है। इफ दिस सम बीटा 2 प्लस बीटा 3 इज इक्वल टू 1 देन देयर आर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। दैट इज
doubling the inputs will double the output, tripling the inputs will triple the output and so on. मतलब अगर बीटा 2 और बीटा 3 की जो एडिशन है या सम है, इन दोनों की जो एडिशन है, अगर फॉर एग्जांपल वो हमारे साथ 1 के बराबर होता है, तो इसका मतलब ये है कि हम इनपुट में जितनी चेंजेस लाते हैं इतनी चेंजेस जो है वो आउटपुट में भी आते हैं। अगर हम जो है इनपुट को डबल कर लेते हैं तो आउटपुट भी डबल हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इनपुट जो है ट्रिपलिंग करते हैं, मतलब ट्रिपल ज़्यादा करते हैं, तो आउटपुट भी ट्रिपल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन. If this sum is beta 2 plus beta 3 is less than 1, then there are decreasing return to scale. That is doubling the inputs less than double the output. मतलब ये है अगर हम बीटा 2 और बीटा 3 की जो कोफिशिएंट है अगर वो हम उसको ऐड कर ले और ये दोनों एडिशन जो है वो लेस देन 1 है, तो इसका मतलब क्या है, डिक्रीज इन रिटर्न टू स्केल. डिक्रीज इन रिटर्न का स्केल मतलब ये है अगर हम जितना जो है डबलिंग जो है डबल तौर पर अगर हम इनपुट्स को जो ज़्यादा करेंगे, ठीक है, मतलब इनपुट हम ज़्यादा डबल टाइम जो है वो हम इनपुट ज़्यादा करेंगे और आउटपुट में जो है वो डबल टाइम जो है वो डिक्रीजिंग आ जाएगा, ठीक है. ये हमारे साथ क्या है, डिक्रीजिंग रेट टू स्केल है. फाइनली इफ द सम इज बीटा 2 प्लस बीटा 3 इज ग्रेटर देन 1, देयर आर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. That is doubling the inputs more than doubles the output. मतलब ये है अगर हम बीटा 2 और बीटा 3 को ऐड कर ले और इसकी जो कोफिशिएंट है अगर इन दोनों की एडिशन जो है वो 1 से ज़्यादा हो, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है. और इंक्रीजिंग रिटर्न का स्केल का मतलब ये है कि मतलब अगर हम इनपुट को दुगनी ज़्यादा करेंगे तो आउटपुट में भी दुगने से ज़्यादा जो है वो इन आउटपुट में तब्दीली आएगी, ठीक है. The Cobb-Douglas production function for the USA. To illustrate the Cobb-Douglas function we present in table 2.1 data on output is measured by value added in thousand of dollar, labor input, worker hour in thousand, and capital input, capital expenditure in thousand of dollar for the US manufacturing sector. The data is cross-section covering 50 states and Washington DC for the year 2005. The table can be found on the companion website. मतलब ये है कि हम अभी जो है प्रैक्टिकली यूएसए का डाटा लेते हैं जो 2005 में उन्होंने कलेक्ट किया था, ठीक है, वो हम प्रैक्टिकली जो है वो लेते हैं, ठीक है, और उस पर जो है कॉब-डगलस फंक्शन जो है वो यूएसए की इकानों पे हम रन करते हैं, ठीक है. और ये डेटा फाइल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है. वो हमारे साथ जो डेटा फाइल होगा वो मैं अलग में आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊँगा. लेकिन टेबल 2.1 ने जो हमें आउटपुट दी है, ठीक है, जो रिजल्ट उसकी आई है जो हमने बुक में डायरेक्ट डाउनलोड की है, ठीक है, वो हमने डेटा यूज़ की है टेबल 1 और 2_1 का डेटा हमने यूज़ किया है. वो हमने ऑफिशियल वेबसाइट से गुजरात इकोनॉमेट्रिक्स बाय एग्जांपल की वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया था. पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है. अगर आप लोगों को डेटा के डाउनलोड करने का तरीका मालूम नहीं हो तो उधर मैंने डाउनलोड की है, ठीक है. और यहाँ पर जो हम डेटा यूज़ करेंगे, ठीक है, ये हम जो है क्रॉस सेक्शन डेटा यूज़ करेंगे, ठीक है. टेबल 2.2 कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन फॉर यूएसए 2005. नोट For table 2.2 estimation, we use data which name is table 2_1 XLS. मतलब ये है यहाँ पर जो कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो इकोनॉमेट्रिक्स बाय एग्जांपल चैप्टर 2 में एस्टिमेट हुआ है, ठीक है, उसमें ये जो एस्टिमेट हुआ है यहाँ पर ईव्यूज़ की आउटपुट जो है यहाँ पर पड़ी है, ठीक है. ये उन्होंने गुजराती बाय इकोनॉमेट्रिक्स की बुक में गुजराती ने उधर जो है टेबल 2_1 का डेटा यूज़ की है. और ये क्वेश्चन आता है कि मतलब ये डेटा कहाँ से आएगा, टेबल 2_1 XLS, ये डेटा कहाँ से आएगा. तो ये डेटा का आंसर ये है कि मतलब ये डेटा जो है वो हमने पहले लेक्चर जो प्रीवियस लेक्चर है वो हमने उधर जो है लेक्चर में मैंने आपको तरीका बताया था कि मतलब हम इस डेटा को कैसे डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है. गुजराती बाय इकोनॉमेट्रिक्स बाय एग्जांपल की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम गए थे, ठीक है, और ये डेटा जो है हमने डाउनलोड किया था, ठीक है. अब मैं जो है इस कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है यहाँ पर जो रिजल्ट यहाँ पर हमें दी है वो मैं प्रैक्टिकली जो है ईव्यूज़ में अभी आपके सामने एस्टिमेट करता हूँ, ठीक है. एक मिनट, पहले आपने
हमने जो डेटा है डाउनलोड किया है, ठीक है, पहले आपने जो एक्सेल फाइल में आना है, ठीक है, वो मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि मतलब वो डेटा डाउनलोड कैसे करने हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपना एक्सेल फाइल ओपन कर दिया है, ठीक है। जब मैंने अपना एक्सेल फाइल ओपन कर दिया, ठीक है, तो हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे डेटा सेट है, ठीक है, लेकिन मैंने जो है टेबल 2_1 का डेटा मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। जब मैंने इसको ओपन कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एलन आउटपुट है, मतलब उन्होंने यहाँ पर जो है आउटपुट जो है यहाँ पर उन्होंने लॉग उन्होंने ऑटोमेटिकली ली है, ठीक है, पहले से उन्होंने ली है, ठीक है। ये आउटपुट है, ये लेबर है, और ये हमारे साथ क्या है, कैपिटल है, ठीक है। और ये जो है ये इन तीनों का जो ये जो तीन वेरिएबल है, आउटपुट और लेबर और कैपिटल, इसका उन्होंने लॉग ली है, ठीक है। एलन आउटपुट, एलन लेबर, एलन कैपिटल, इन तीनों का मतलब ये है कि उन्होंने जो है लॉग ली है, ठीक है। बाकी भी 3 4 5 वेरिएबल है, लेकिन वो हमारे यूज़ में नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको अब व्यूज़ में कैसे इंटर करूंगा, मतलब ये जो डाटा है ये मैं कैसे व्यूज़ में इंपोर्ट करूंगा, ठीक है। मैंने पहले भी बताया, इसको मैंने कट कर दिया, मैंने इसको जो है सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। जब मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया तो मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। मैंने इसको इस तरह किया, ठीक है, व्यूज़ में आ गए, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ड्रॉप कर दिया। फिर नेक्स्ट फिनिश नो। ये डेटा जो है हमारे साथ जो है सक्सेसफुली हमने यहाँ पर डेटा जो है वो इंपोर्ट कर दिया ईव्यूज़ में, ठीक है। तो अभी हमें कॉपडाक्लस प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो एस्टिमेट करने हैं, ठीक है। तो मैं क्विक पे आ गया, ठीक है, क्विक के बाद में एस्टिमेट इक्वेशन पे आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो मैंने यहाँ पर जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एलन कैपिटल है, ठीक है, एलन कैपिटल। तो यहाँ पर हमारे सामने आ गया, यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर सी इसलिए कि हमें इंटरसेप्ट लेनी है, सी का मतलब ये है कि मतलब हमने इंटरसेप्ट लेने हैं, ठीक है। सी के बाद मैंने हमारा दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एलन लेबर है, ठीक है, एलन लेबर, ठीक है, ये हम पर मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद स्पेस एलन कैपिटल, एलन कैपिटल। आई रिपीट मतलब ये है कि यहाँ पर जो है सॉरी ये हमारे साथ जो है आउटपुट यहाँ पर आता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ क्या है, आउटपुट, एलन आउटपुट कहाँ पर है, एलन आउटपुट, ठीक है। आई रिपीट, पहले हमने यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल लेने हैं, तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एलन आउटपुट है, ठीक है। फिर इसके बाद स्पेस लगानी है और यहाँ पर सी लगानी है, सी का मतलब ये है कि हमने इंटरसेप्ट लेने हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल लगाने हैं, मतलब जो हमारे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक एलन लेबर है और दूसरा जो है एलन कैपिटल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पहले एलन लेबर लिखा और इधर जो है एलन कैपिटल लिखा, ठीक है। तो मैंने अभी ओके कर दिया, तो यहाँ पर हमारे साथ जो है वो मॉडल जो है वो सक्सेसफुली जो है वो एस्टिमेट हो गए, ठीक है। सक्सेसफुल के बाद हम देखें तो यहाँ पर जो रिजल्ट है, ठीक है, इसकी रिजल्ट और यहाँ पर जो मैंने बुक से कॉपी किया है इसकी रिजल्ट जो है दोनों सेम टू सेम है। सेम टू सेम इसलिए है क्योंकि गुजराती बाय इकोनॉमेट्रिक्स बाय एग्जाम्पल की बुक में जो है उधर भी उन्होंने ये डेटा यूज़ किया है, ठीक है, टेबल 2_1, और यहाँ पर भी मैंने ये डेटा यूज़ किया है। तो हमारे और गुजराती इकोनॉमेट्रिक्स का जो बुक है उधर का रिजल्ट जो है सेम है, ठीक है। अभी इसकी इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एलन लेबर of about 0.47 is that if we increase the labor input by 1%, on average output goes up by about 0.27% holding the capital input constant। इसका मतलब ये है कि मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी जो कोएफिशिएंट है वो हमारे साथ क्या है 0.46 है, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर लिखे अप्रोक्सीमेटली जो है वो हमने यहाँ पर ली है क्योंकि हमने राउंड अप किया है, तो हमारे साथ ये आ गया 0.47, ठीक है, 0.47, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम
1% जो है वो लेबर इंक्रीज करेंगे तो हमारे साथ जो है आउटपुट जो है वो 0.47 जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अदर होल्ड इन कैपिटल इनपुट कांस्टेंट, ठीक है। सिमिलरली होल्ड इन द लेबर इनपुट कांस्टेंट, इफ वी इंक्रीज द capital input by 1% on average, the output increases by about 0.5%. Relatively speaking, it seems a percentage increase in the capital input contributes more toward the output than a percentage increase in the labor input. इसका मतलब ये है अगर हमने 1% जो है कैपिटल को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो हमारे साथ आउटपुट जो है वो 0.52% जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो हम अगर लेबर की कोपिशन को देखे, ठीक है, 0.47 और कैपिटल की कोपिशन को देखे 0.57, तो वो जो है इसकी जो कंट्रीब्यूशन है आउटपुट में तो वो लेबर की निस्बत जो है ज़्यादा है, क्योंकि कैपिटल जो है वो मशीन है, ठीक है, और लेबर जो है वो इंसान है, तो वो जो है कि जाहिर बात है कि मशीन है वो इंसान से ज़्यादा काम करता है, तो इसलिए जो है इसकी कोपिशन जो है वो लेबर से ज़्यादा है। द सम ऑफ द टू slope coefficient is about 0.9896, which is close to 1. This would suggest that the US Cobb-Douglas production function was characterized by constant return to scale in 2005. अगर हम इन दोनों मतलब कैपिटल की जो इनपुट है, ठीक है, जो कैपिटल का जो कोफिशिएंट है जो उधर हमने उसको नाम दिया था बीटा 2 और यहाँ पर जो कोफिशिएंट है हमने उधर नाम दिया था, ठीक है, बीटा 3। अगर हम इन दोनों को ऐड कर ले मतलब 0.47 प्लस 0.52, ठीक है, अगर हम उसको ऐड कर ले तो ये हमारे साथ क्या आ जाएगा 0.98, तो हमारे साथ जो है क्लोज टू 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यूएस की जो इकोनॉमी है, ठीक है, यूएस की जो कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है वो 2005 में कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल था, ठीक है। Incidentally, if you want to get back to the original production function given in equation 2.1, it is as follow: Qi is equal to 48.79 L raised to power 0.47 K raised to power 0.51, ठीक है। हमने ये बात याद रखो, ठीक है, हमने जो एस्टिमेट किया था मॉडल, ठीक है, ये हमने ये एस्टिमेट किया था, ठीक है, जो लॉगमेटिक फॉर्म ने हमने एस्टिमेट किया था, डबल लॉग वाला मॉडल हमने एस्टिमेट किया था। अगर मैं चाहता हूँ कि मतलब जो है, ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं उसको ओरिजिनल हालत में लिखूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका जो है एंटी लॉग ले लूँगा। ये 3.88 जो है इसका मैं एंटी लॉग ले लूँगा। एंटी लॉग होने के बाद जो है ये जो कोफिशिएंट है ये हमारे साथ 48.79 जो है वो बन जाएगा, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ द रिजल्ट, all thought judged by the usual statistical criteria, the result of the Cobb-Douglas production function given in table 2.2 look impressive. We have to guard against the possibility of heteroscedasticity. This is because our sample consists of very diverse states with diverse manufacturing sector. Also, the physical size and population density varies from state to state. In chapter 5 on heteroscedasticity, we will reconsider the Cobb-Douglas production function to see if we have the problem of heteroscedasticity. In chapter 7 on specification error, we will also find out if the error term is normal distributed for the T and F test. Depend critically on the normality assumption, especially if the sample size is small. In that chapter, we will also consider if there is any specification error in the Cobb-Douglas production function used in our example. मतलब ये है कि इवैल्यूएशन ऑफ द रिजल्ट जो है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर हम इसकी रिजल्ट को देखें, ठीक है, मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पर क्रॉस सेक्शन डेटा यूज़ की है, तो क्रॉस सेक्शन डेटा हमने यूज़ किया है, मतलब उन्होंने जो है यूएस में जो है मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज जो है से उन्होंने डेटा कलेक्ट किया था। इसका नेचर जो है वो बहुत डाइवर्स है, तो यहाँ पर जो आर स्क्वायर का मसला आया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, तो इसका मतलब यह है कि इस डेटा में मसला है, तो इसमें डेटा में हेटेरोस्केडास्टिसिटी का मसला है, ठीक है। तो हम अभी जो है हेटेरोस्केडास्टिसिटी को डिस्कस नहीं करते, बल्कि नेक्स्ट चैप्टर में हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसकी फंक्शनल फॉर्म में भी मतलब जो है स्पेसिफिकेशन ऑफ द मॉडल में भी कुछ मसला है, ठीक है, हम भी इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर हम इसके मतलब अगर प्रोबेबिलिटी वैल्यू को हम देखें, ठीक है, यहाँ पर लेबर और कैपिटल की जो वैल्यू अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू देखें तो हम ये जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है लेबर और कैपिटल ऑन आउटपुट, ठीक है, ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, ये रिजल्ट मतलब अच्छा है, ठीक है। अगर हम इसकी
एफ स्टैटिस्टिक को देखें तो ये भी मतलब एफ स्टैटिस्टिक की जो प्रोबेबिलिटी ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है बहुत अच्छी है। तो मतलब ओवरऑल मॉडल यहाँ पर जो है वो बेस्ट है, लेकिन आर स्क्वायर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर। और क्रॉस सेक्शन में जो है, क्रॉस सेक्शन डेटा में आर स्क्वायर इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो यहाँ पर डेटा में कुछ मसला है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमेटिक्स। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह।